तो format comparative statement of profit and loss account. First, see the format. Revenue from operation. What is revenue from operation? It is net sales. Net sales is revenue from operation. तो net sales और previous year का लिख लेंगे, फिर current year का लिखेंगे. हमेशा last year का पहले लिखेंगे और current year का बाद में लिखेंगे. तो revenue from operations यहाँ लिख लेंगे. Then other incomes, previous year, current year. तो एक तो net sales हो गई, that is revenue from operations, and दूसरा हो गया other incomes. इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. Revenue from operations और other incomes को, that will be total revenue. That is total revenue. ठीक है, वो यहाँ total आ जाएगा. ये total income आ गई हमारी. ठीक है, इसके बाद हम expenses लिखेंगे. अब expenses में क्या क्या आ सकता है? Cost of material consumed, purchase of stock in trade, change in inventories, employees benefit expenses, finance cost, depreciation and amortization expenses and other expenses. ये सब जो भी आपको expenses दिए हों, ये previous year, current year आप लिखते चले जाएंगे. ठीक है, other expenses. और फिर सारे expenses को total कर लेंगे. This is total expenses. ठीक है, this is total expenses. ये total expenses आ गए. Total expenses, अब देखिए, total revenue में से अगर हम total expenses minus कर दें, that is 3 minus जो भी है, total expenses अगर हम minus कर दें, total revenue minus total expenses, that is profit before tax. फिर profit before tax में से अगर हम income tax minus कर दें, ये profit आ गया आपका, इसमें से अगर हम income tax minus कर दें, then you will get profit में से income tax minus कर दिया, you will get profit after tax. तो बहुत easy format है ना easy हिमाल? Is it easy? Yes, sir. Okay. So अब comparative की बात आती है. This is a statement of profit and loss. Now, if we want to compare it, देखिए, if suppose, one second, if suppose revenue from operation is 1 lakh. In previous year, that is 2019 also, जो भी दिया आपको, and now the current year is revenue from operation, that is net sales 1,50,000. So the difference, absolute change is 50,000. यानी last year net sales थी आपकी 1 lakh, current year में 1,50,000 हो गई, तो change is 50,000. ठीक है, and the percentage change will be 50,000 upon 1 lakh into 100. That is 50%. Like I have told you yesterday in balance sheet. है ना? बैलेंस शीट में यही तो बताया था. प्रीवियस ईयर की फिगर आपको क्वेश्चन में दी होगी, करंट ईयर की दी होगी. You will find out the absolute change and you will find out the percentage change. Percentage change आप कैसे निकालेंगे? Absolute change upon previous year figure into 100. ठीक है. Same way other incomes, मान लीजिए other incomes 30,000 दी हुई है. ठीक है, और यहां पर आपको करंट ईयर में आपको दिया हुआ है 20,000. ठीक है, तो नेट चेंज कितना है? -10,000. ठीक है, अब कम हो रही है, 30,000 से 20,000 हो रही है, तो माइनस में लिख देंगे. ठीक है, और परसेंटेज चेंज कितना होगा? 30,000 सॉरी 10,000 अपॉन 30,000 into 100, that is 33.33%. Are you getting my point? Are you getting my point? Saman? Yes, sir. चलिए, ओके.
तो टोटल इनकम आ गई आपकी 1,30,000 और ये आ गया आपका 1,70,000. So the increase is 40,000 absolute change, and then you will find out the percentage change. So in the same way, you are going to do in expenses, total expenses, profit before tax, income tax and profit after tax. इसी तरीके से आप कंपेयर करते जाएंगे और परसेंटेज चेंज निकालते चले जाएंगे. अफकार यस सर. ये देखा आपने? यस सर, देखा भी. इज इट क्लियर? नो सर. व्हाई नो? यू आर ऑलवेज लेट. अरे सर, लेट हो गया, देख नहीं पाए. देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था बैलेंस शीट ऑफ कंपैरेटिव एंड कॉमन शीट बैलेंस शीट. वो आप वो समझ में आ गया कल वाला आपको? यस सर. कल जो मैंने आज मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला एक बार फॉर्मेट एक बार और देख लीजिए. फर्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन कंपनीज बैलेंस शीट. In companies, we name it revenue from operation. Generally, we name it net sales. So revenue from operation is net sales. तो पहले हम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की नेट सेल्स लिख लेंगे. उसके बाद उसमें अदर इनकम्स ऐड कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा आपका. यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस सर. यस सर. चलिए, उसके बाद एक्सपेंसेस लिख लेंगे. एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस. ये सब आप प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के लिख लेंगे. क्लियर? और उसके बाद इन एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस. ये आ जाएगा आपका टोटल एक्सपेंसेस. देन इसके बाद हम प्रॉफिट. अब देखिए, रेवेन्यू में से अगर हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो इट विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स. टोटल रेवेन्यू में से अगर हम टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे देन वी विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. एंड आफ्टर दैट वी विल माइनस इनकम टैक्स फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड वी विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नाउ इज इट क्लियर? यस सर. चलिए, उसके बाद मैंने जैसे आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट पढ़ाई थी कल, सेम उसी तरीके से मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि प्रीवियस ईयर में 1 लाख था, करंट ईयर में 1,50,000 है. तो चेंज कितना है? 50,000. एब्सोल्यूट चेंज इज 50,000 एंड परसेंटेज चेंज इज 50,000 अपॉन 1 लाख इनटू 100, दैट इज 50%. Other incomes, suppose it is given in the question 30,000 for previous year, 20,000 from current year. So absolute change is minus 10,000. See, it is decreasing. It is minus 10,000 and the percentage change will be 10,000 upon 30,000 into 100, that is 33.33%. Then total revenue is 1,30,000 and current year it is 1,70,000. So the absolute change is 40,000. 1,70,000 minus 1,30,000 and the percentage change you will find out 40,000 upon 1,30,000 into 100. यहाँ पर लिख देंगे. Same way expenses. Expenses आप लिखते जाएंगे. जो भी आपको जो भी दिए हैं, जो नहीं दिए हैं उनको इग्नोर कर दीजिए. कभी कभी अदर इनकम्स भी नहीं दी होती हैं, इग्नोर इट. जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं उनको आप प्रीवियस ईयर करंट ईयर में लिखते जाएंगे और उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज निकाल देंगे और निकाल देंगे. इसी तरह आप पूरा नीचे तक करेंगे. नाउ इज इट क्लियर? जमान?